And let's continue with the chapter of LibreOffice Impress. In today's class, we will learn working with slides, how we can insert a duplicate slide, how we can change the layout, cut, copy, paste, and some other options. Let's start with the LibreOffice. Working with slides. Now to carry forward with the presentation work, the next slide has to be added. The new slide can be inserted into the presentation by inserting a new slide as well as inserting a duplicate slide. जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, आपको एक के बाद एक दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड आपको इंसर्ट करनी होती है, तो उसके दो ऑप्शन है। या तो आप उस न्यू स्लाइड के थ्रू न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो, और आप उसी पर्टिकुलर स्लाइड को डुप्लीकेट करके उसमें कुछ चेंजेस करके आप कर सकते हो। Inserting a duplicate slide will insert a copy of the existing or current slide into the presentation. Inserting a duplicate slide के थ्रू आप जो आपकी करंट कॉपी है उसी को डुप्लीकेट करते हो। How we can insert a duplicate slide in a presentation, and then we will see how can insert a new slide in a presentation. We can see both the options simultaneously. Let's check. This presentation is not created by me. I'm just inserting this presentation. I want to use this slide and I want to add one more slide after this one. मैं इसी के बाद में एक स्लाइड को ऐड करना चाहता हूँ। तो first thing, right click on this particular slide and here you find a duplicate slide option. By clicking on duplicate slide, look, the slide number 2 and slide number 3 is similar. दोनों, अब मुझे जो भी एक है, अब मुझे जो भी चेंजेस करने में स्लाइड नंबर 3 में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, मैं जूम को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो लिख देता हूँ, वीडियो। ओके, सो आई कैन चेंज इन एग्जिस्टिंग स्लाइड। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, duplicate slide को add, and for adding a new slide, again right click on this particular slide. Here is the option of new slide, or you can click on Ctrl plus M on your keyboard. आप न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हो या अपने कीबोर्ड पर Ctrl plus M को यूज करके आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। Look, my new slide is up here. You can change your layout by using this simple options कि मुझे किस तरह का लेआउट यहाँ पर चाहिए इस पर्टिकुलर न्यू स्लाइड के लिए। मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करके और अपने पर्टिकुलर स्लाइड के लिए लेआउट चूज कर सकता हूँ। आई एम चूजिंग दिस स्लाइड, नाउ आई कैन ऐड एनीथिंग ऑन हियर। सो you have two options. First, you can add a duplicate slide, which is create a duplicate of a existing slide, or you can choose a new slide. And after inserting a new slide, you can choose a different layouts. आप अपने layouts को उसके according choose कर सकते हो। Okay? The next option is copying and pasting slides. Slides को copy और paste करना। How you can do this? Select your particular slide, right click on your slide. Here is the option of copy. You can choose the copy, or you can click on Ctrl plus C on your keyboard. आप copy पर भी क्लिक कर सकते हो और Ctrl plus C भी कर सकते हो अपने कीबोर्ड पर। Copy, and you can just select the position where you want to insert that slide. Right click on that slide and click on paste. Now the slide is inserted just at the next of this slide. जो भी आपने सेलेक्ट की थी उसके नेक्स्ट स्लाइड पर वो आ जाएगी। कट, राइट क्लिक ऑन डिजाइन, जिसको भी आप कट करना चाहते हो, क्लिक ऑन कट। द स्लाइड विल मूव फ्रॉम हियर, यहां से वो स्लाइड डिलीट हो गई है। नाउ अगेन सेलेक्ट द पर्टिकुलर स्लाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट एंड राइट क्लिक and click on paste. So these are the simple options for insert, copy and cut off slide. You can drag your slide also. आप अपनी स्लाइड को ड्रैग करके भी मूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं हम उसको? सेलेक्ट योर डिजायर्ड स्लाइड, आपको जो भी स्लाइड को ड्रैग एंड मूव करना है, सेलेक्ट योर स्लाइड,
होल्ड द माउस लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए एंड नाउ ड्रैग योर स्लाइड। देखिए ये आपको शो कर रहा है किस पोजीशन पर आप कर रहे हैं, ये आपको कंटिन्यूटी में शो करता रहेगा। लाइक मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करना चाहता हूँ, रिलीज योर माउस बटन। After releasing, this is the first slide and now the slide position is changed. You can rename your slide also. अब अपनी slide का name भी change कर सकते हो. How I can do this thing? Right click on your particular slide. Here is the option of rename slide. Click on rename slide. A new dialog box appears. Here's the option of PowerPoint presentation. You can change your name. Like I'm giving this name is title slide. एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब मेरी स्लाइड का नाम क्या हो गया, टाइटल स्लाइड। ये देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर ये टाइटल स्लाइड शो कर रहा है। बाकी के ऊपर स्लाइड 6, स्लाइड 5, स्लाइड 4, स्लाइड 3 शो कर रहा है, बट यहाँ पर इसके ऊपर इसका नाम शो कर रहा है टाइटल स्लाइड। सो वी सी हाउ टू कट एंड कॉपी योर पर्टिकुलर slide, how to drag and drop your particular slide, how to change your slide name. If you want to delete your slide, आप अपनी slide को delete करना चाहते हो तो just click on your slide. The first thing you can click delete button on your keyboard. आप delete button को अपने keyboard पर जो delete button है उसको press कर सकते हो, और you can right click on your, here's the option and here's the option of delete slide. Click on delete slide, your slide will be deleted. आपकी जो स्लाइड थी वो डिलीट हो गई है। सो आफ्टर क्रिएटिंग योर स्लाइड्स, आप अपनी स्लाइड्स बनाने के बाद में, कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्लाइड्स हम बना लेते हैं, हमें जैसे जैसे पॉइंट्स याद आते रहते हैं हम अपनी स्लाइड बनाते रहते हैं, बट यू कैन आफ्टर क्रिएटिंग ऑल्सो आप अपनी पूरी स्लाइड्स बनाने के बाद में भी अपनी स्लाइड्स को मैनेज कर सकते हो इन सिंपल ऑप्शंस को यूज करके। कॉपी पेस्ट डिलीट योर कंटेंट्स ऑल्सो, आप अपने कंटेंट्स को भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। यू नो द ऑप्शंस ऑफ कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। सो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर एग्जिस्टिंग डेटा, जिसको भी आपको कॉपी करना है या कट करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। देन आइदर यू कैन राइट क्लिक ऑन योर पर्टिकुलर डेटा, कट, कॉपी, पेस्ट, तीनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन क्लिक ऑन कॉपी और यू कैन क्लिक कंट्रोल प्लस सी ऑन योर कीबोर्ड। कॉपी, अब जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड again right click and paste. Your data will be here. You want to cut your particular data, just select your data, control X on your keyboard and you can paste slide. जैसे मैं slide number 4 पर आ गया, now I can paste my data over here, paste. So you can use your कंट्रोल कॉपी ऑप्शन फॉर योर कंटेंट्स ऑल्सो, आप अपने कंटेंट्स के लिए भी कंट्रोल और कॉपी का ऑप्शन यूज कर सकते हो। फॉर डिलीटिंग योर कंटेंट, लाइक आई एम डिलीटिंग दिस इमेज, मुझे इस इमेज को डिलीट करना है, जस्ट सेलेक्ट योर इमेज, राइट क्लिक ऑन योर इमेज, राइट क्लिक ऑन योर इमेज, जस्ट सेलेक्ट योर इमेज, क्लिक ऑन डिलीट बटन, आप अपने कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करिए एंड योर इमेज विल बी डिलीटेड। अगर आपको टेक्स्ट को डिलीट करना है, सेलेक्ट योर टेक्स्ट एंड प्रेस डिलीट बटन ऑन योर कीबोर्ड। आई एम डूइंग सो मच चेंजेस, मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं अपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर।
नाउ आई वॉन्ट टू अनडू माई सम चेंजेस, मैं अपने करना चाहता हूँ, अनडू करना चाहता हूँ. अनडू एंड रीडू, देर आर टू ऑप्शंस. अनडू, अनडू रिवर्स योर लास्ट एक्शन. आपने जो भी वर्क किया, जो भी आपका लास्ट एक्शन है उसको रिवर्स करता है. एंड रीडू, रीडू रिवर्स द अनडू एक्शन. रीडू जो होता है वो को रिवर्स करता है. ओके, सो on the screen you will find undo option and here is the option of redo. आपको कंट्रोल प्लस Z करना होता है और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y. अभी रीडू का ऑप्शन अनहाइलाइटेड है, मींस देयर इज नो एक्शंस फॉर रीडू. रीडू के लिए अभी कोई एक्शन नहीं है. आई एम क्लिकिंग ऑन अंडू ऑप्शन. जैसे जैसे मैं अंडू पे क्लिक करता रहूंगा, रीडू भी हाईलाइट हो गया और रीडू के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए. मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं अभी तक, मैं उन सब को रिवर्स कर सकता हूं. मैंने जो भी चेंजेस किए मैं उन सब को यहां पर रिवर्स कर सकता हूं. एंड दिस इज द रीडू ऑप्शन. आई कैन रिवर्स द अंडू ऑप्शन. मैं अंडू के जो ऑप्शंस थे मैं उनको रिवर्स कर सकता हूं रीडू को यूज करते हुए. लुक, यहीं तक हमने चेंजेस किए थे. सो दीज आर द सिंपल ऑप्शंस यूजिंग फॉर वर्किंग विद कंटेंट्स ऑल्सो. आप अपने कंटेंट्स के साथ में भी किसी भी तरीके से वर्क कर सकते हो. आप उनको रीडू कर सकते हो, आप उनको अंडू कर सकते हो, आप उनको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो. यू कैन वर्क ऑन योर स्लाइड ऑल्सो. आप अपनी स्लाइड्स को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपनी स्लाइड को रीनेम कर सकते हो. There are lots of options available in LibreOffice Impress. So this is it for today's class. We will continue in a next class. Thank you.